Hello children, all are safe and sound, all are taking care of yourself. Good beta, be very conscious. All right children, you are welcome to our civics class. In the previous session you heard about the state Punjab. You heard about the situation prevailing in Punjab. Of course, there was dissatisfaction among the people, which resulted into cycle of violence, about which you were explained in the previous session. Of course, you were told that how the people living in Punjab face the violence. And then the incidents related to Golden Temple and the assassination of Indira Gandhi was also an important point for this state to be aware of. But people at the end, as they suffered a lot, they wished to have peace and harmony in their state. Clear? Recalled the previous point? Now, today, our point number 14 is about the Northeast. Point number 14, the Northeast. Our today's point is the Northeast, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में हम आज इस टॉपिक के अंडर में पढ़ेंगे. As children, we are reading about the regional aspirations. हम इस सेशंस में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में, अलग अलग क्षेत्रों से उठने वाली मांगों के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आज हम पूर्वोत्तर क्षेत्र से उठने वाली मांग के संदर्भ में पढ़ेंगे. As the regional aspiration of the people staying in the Northeast, that it reached a turning point in 1980s, 1980 के दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाली जनता की जो क्षेत्रीय आकांक्षा थी, उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ देखा गया. As this region consists of 7 states and it is known as 7 sisters, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र 7 राज्यों का संगठन है. इसे 7 बहनों के रूप में भी जाना जाता है. where 4% of the population reside, जहां जनसंख्या का केवल 4% भाग निवास करता है. There were lot of changes in this region since 1947. 1947 के समय इस क्षेत्र में कई परिवर्तन देखे गए. त्रिपुरा, मणिपुर, Khasi Hills of Meghalaya were the princely states, about which you already know that how 565 princely states were merged to Indian Union. So in the same way, Tripura, Manipur and Khasi Hills of Meghalaya were the princely states which were merged with India after independence. Nagaland state was created in 1963. This also you have read in the first chapter only, Challenges of the Nation Building, where you heard about the reorganization of the states. आपने एक पार्ट में पढ़ा था जहां चुनौतियों के बारे में मेंशन था कि क्या चुनौतियां देश के समक्ष थी आजादी के बाद, उसमें किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन किया, इस संदर्भ में आपने पहले भी विस्तार से पढ़ा है. तो नागालैंड को एक राज्य के रूप में 1963 में घोषित किया गया. मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय दे वर said as the state in 1972, Mizoram and Arunachal Pradesh in 1987. मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा मिला और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया. But children, partition of India in 1947 reduced the northeast economy as development suffered. 1947 के बाद पूर्वोत्तर का ये क्षेत्र काफी आप कह सकती हैं इसे नजरअंदाज किया गया है. इसके विकास पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया.
So most of the people of the state of Northeast, they underwent two major changes because of the migrants from the neighboring states as well as from the countries, अर्थात पड़ोसी राज्यों एवं अन्य देश से आने वाले शरणार्थियों के कारण भी यहाँ की जनसंख्या काफी प्रभावित हुई, जिससे अन्य नई चुनौतियां यहाँ पर उभर कर आने लगी। कई नई समस्याओं का भी जन्म धीरे धीरे होता गया। Thus, the isolation of the region, its backwardness, comparing to other parts of the countries, what happened, resulted into demands from different states of Northeast. अर्थात पूर्वोत्तर भाग का अलग थलग पड़ा है जाना, देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा पूर्वोत्तर राज्य का अधिक से अधिक विकास ना किया जाना, इससे लोगों में आप कह सकती हैं सरकार के विरुद्ध या प्रशासन के विरुद्ध उनकी जो मांग थी वह बिल्कुल अलग सी हो गई। वे अपने राज्य का विकास चाहते थे। So what were the issues, the three issues which you will be reading? In that, the issues demanded the politics of the Northeast. What were they? They were demands for autonomy, स्वायत्ता की मांग, movements for secessionist अलगाववादी आंदोलन, and the third was opposition to outsiders, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। ये तीनों ही अलग अलग मांगे थी, इश्यूज थे, जिसके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। Now children, just now you heard about the Northeast. Under this, as I told you, you have got three major issues. The first is demand for autonomy. Point number 15. ना पॉइंट नंबर 15, आप 15वां पॉइंट, इसी पॉइंट के परिप्रेक्ष्य में तीन इश्यूज हैं, हम देखेंगे। इन दिस द फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, स्वायत्ता की मांग। चिल्ड्रन, अर्लियर एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कंप्राइजेस द स्टेट ऑफ असम, अर्थात आजादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा के अलावा पूरा इलाका असम के नाम से जाना जाता था। बट there was demand for autonomy which was raised by the non-Assamese. ऐसी स्थिति में स्वायत्ता की मांग जो असमी लोग नहीं थे या जो असमी नहीं थे उनके द्वारा उठाई गई। Why? Because they felt that government was trying to impose Assamese language on them, for which they started protesting, which was led by the tribal community, अर्थात जो नॉन असमीज थे उन्होंने एहसास किया, उनको ये लगा कि असमी भाषा उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है, अर्थात इस भाषा के विरोध में उन्होंने सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई, जहां जनजाति समाज के नेताओं के द्वारा इसको प्रतिनिधित्व मिला। एंड व्हाट डिड दे हैड द डिमांड? दे हैड द डिमांड टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम असम। उन्होंने अपने आप को असम से अलग एक क्षेत्र की मांग की। What did they do for it? They formed East India Tribal Union, and later on, very true, that the activities were becoming more and more. बड़ी गतिशीलता थी इस संगठन में। So after that, after some time later on, it was formed as All Party Hills Leader Conference in 1960. Thus, what happened? It resulted into the central government. What did it do? It created Meghalaya, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ आसाम। इस प्रकार केंद्र सरकार को मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, असम से ही ये तीन राज्य बनाने पड़े। त्रिपुरा एंड मणिपुर वेर ऑल्सो अपग्रेडेड इनटू स्टेट, अर्थात त्रिपुरा और मणिपुर जो इन्हें भी एक राज्य का दर्जा दिया गया।
Thus, the reorganization of Northeast was completed by 1972. कहा जाता है कि इस प्रकार सरकार की ओर से 1972 में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन इसे हम अंत नहीं कह सकते हैं क्योंकि स्वायत्तता की मांग अभी भी उसी प्रकार अपनी चरम सीमा पर थी. What had happened? हुआ क्या था? The different communities like Kavis, Boda and Dimas, they wanted separate state through plebiscite and popular movements. इस प्रकार जो तीन अलग अलग समूह थे, दिमास, बोडा और काबिज, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने लिए एक अलग अलग क्षेत्र की मांग की. फिर सरकार ने इसका भी समाधान निकाला. What did it do? The Karbis and Dimas were granted autonomy under district council and the Boda was granted autonomous council. सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में कार्बी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत तथा बोडो जनजाति को स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया, जिससे राज्य में, क्षेत्रों में शांति और सुव्यवस्था कायम की जा सके. Now we'll see to the second issue, secessionist movement. Secessionist movement. Point number 16 is secessionist movement, अलगाववादी आंदोलन. Children, demand for autonomy was easier for the government to solve. Why? Because there were provisions in the constitution to solve. अलग स्वायत्तता की मांग करना, क्षेत्रों के द्वारा जब स्वायत्तता की मांग की जाती है तो उसका हल आसानी से निकल जाता है क्योंकि उसकी व्यवस्था, उसका प्रावधान हमारे संविधान में किया जा चुका है. बट demand for a separate country was a tedious challenge for the administration, for the country, for the representatives. लेकिन एक अलग देश की मांग करना तो सरकार के लिए, उस देश के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी. What had happened? Because after independence, the Mizo Hill area was an autonomous district within Assam. मिजो पर्वतीय क्षेत्र असम के भीतर एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था. So the Mizos, what did they believe? They believed that they were never a part of the British India. Therefore, they do not belong to Indian Union. उनका कहना था कि वो कभी भी ब्रिटिश भारत के अंग, उनके प्रशासन के अंतर्गत हुए उनके अंग नहीं थे, उनका शासन नहीं था. तो वो भारत में भी, भारत के प्रशासनिक व्यवस्था से भी उनका कोई भी लेना देना नहीं है. And unfortunately, what had happened in 1959, Mizo Hills faced great famine and the Assam government failed to respond to the situation. दुर्भाग्यवश 1959 में मिजो के पर्वतीय क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा और असम सरकार वहां पर उस स्थिति का समाधान करने के लिए, लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी कदम उसे उठाना चाहिए थे, उठाने में असमर्थ रही, असफल रही. Which led to the formation of Mizo National Front, which was led by लालडेंगा. ऐसी स्थिति में मिजो नेशनल फ्रंट लालडेंगा के नेतृत्व में गठित किया गया. So children, in 1966, Mizo National Front demanded for independence, which led to a long battle between Mizo and Indian Army. इस प्रकार 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट का जो गठन किया गया था लालडेंगा के नेतृत्व में, इस संगठन की जो भी गतिशीलता थी, जो उनकी मांगे थी, उन मांगों को लेकर मिजो और भारतीय सेना के बीच काफी लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा. मिजो नेशनल फ्रंट was supported by Pakistan government and even they were provided with shelter. मिजो नेशनल फ्रंट जो था उसे पाकिस्तान सरकार के द्वारा सहायता दी गई और उन्हें शरण भी मिला. But repressive measures had been taken
टू हैंडल द सिचुएशन बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये जरूरी था कि इस प्रकार की बढ़ती हुई गतिविधियों पर रोक लगाया जाए, जिसके लिए भारत सरकार ने दमनात्मक नीति अपनाई। At the end, after 2 decades, the issues were solved. Landenga started negotiating with Indian government under Rajiv Gandhi, who was the prime minister at that time. इस प्रकार करीब 2 सदियों के बाद शांति बधा की आप कह सकते हैं शांति बहाल हुई और लालडेंगा ने राजीव गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनके साथ बातचीत का रास्ता अपनाया। And in 1986, peace agreement was signed between Rajiv Gandhi and लालडेंगा। अर्थात 1986 में शांति समझौता राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच किया गया। अब इनमें क्या क्या शर्तें थी, क्या समझौता किया गया? The first was that Mizoram was granted full-fledged statehood with special pass। मिजोरम को एक पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा दिया गया और उसे उनके अधिकार भी दिए गए। नेक्स्ट वॉज मिजो नेशनल फ्रंट। दे अग्रीड दैट दे विल गिव अप द सेसेशनिस्ट स्ट्रगल। अलगाववादी संघर्ष की राह को भी छोड़ने के लिए जो मिजो जो समुदाय था, जो संघ था, ये भी तैयार हो गए। एंड द थर्ड वॉज लालडेंगा वॉज मेड द चीफ मिनिस्टर। So children, this accord has really proved a turning point in history, as Mizoram is one of the most peaceful states where art and literature develops। इस प्रकार ये समझौता जो शांति समझौता राजीव गांधी और मिजो के जो नेता थे लालडेंगा इनके बीच जो किया गया, ये इतिहास में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक फॉलो करने वाला, अनुसरण करने वाला समझौता था, क्योंकि इसके बाद मिजोरम ही एक ऐसा राज्य है जहां शांति और सुव्यवस्था ही नहीं बल्कि वहां पर साहित्य और शिक्षा, कला, हर रूप से वहां विकास आज भी जारी है। बट चिल्ड्रन, not only Mizoram, you should know about Nagaland also. The state of Nagaland is also just like Mizoram, but the only difference is that it has not yet gained a happy ending। मिजोरम के समान नागालैंड की भी कहानी है, लेकिन उसकी आज तक उसकी जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हुआ। एक खुशहाली से उसका डिसीजन कोई नहीं लिया गया, अर्थात वो डिसीजन आज तक नहीं ले पाया गया जिससे वहां शांति और सुव्यवस्था बनी रहे। Why? Because a section of Nagas which were led by Angmi, Chapu, Fizo, they declared independence from India way back in 1951। अंगमी, जापो, फिजो ने भारत से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया 1951 में। And what did he do? Fizo, he avoided the negotiation। वह भारत के साथ बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे, जिससे उनकी रिजिडनेस प्रूव होती है। बट फाइनली अ सेक्शन ऑफ नागास दे साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परंतु अंत अच्छा होना था। नागाओं का एक समूह ने भारत सरकार के साथ समझौता कर लिया, हस्ताक्षर किए, लेकिन उस समूह को छोड़कर बाकी जो अन्य रिबेलियंस थे वे इस समझौते के लिए किसी भी तरह से अपना समर्थन देने को तैयार नहीं थे। Of course, not a happy ending, children. So still the issue of Nagaland is awaiting for a peaceful decision। So आज भी नागालैंड की जो ये समस्या है, आज भी इंतजार है कि वहां पर भी कोई शांति और सुव्यवस्था व्याप्त करने के लिए कोई ऐसा कदम उठा लिया जाए जिससे राज्य का विकास हो। ओके, क्लियर बेटा? ऑल राइट, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।